শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, চতুর্থ। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 254 থেকে কন্টিনিউ করবো। ওকে, আদি লীলা 4.254 অনওয়ার্ডস, 254 নম্বর শ্লোক। আজ আর তাম্বুল চর্বিত যাবে করে আস্বাদনে, তাম্বুল চর্বিত যাবে করে আস্বাদনে, আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে, আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে, আমার সঙ্গমে রাধা পায়ে যে আনন্দ, আমার সঙ্গমে রাধা পায়ে যে আনন্দ, মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত, শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত, লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী, লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী, তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি, তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি, দোহার যে সমরস ভরত মুনি মানে, দোহার যে সমরস ভরত মুনি মানে, আমার ব্রজের রস সেও নাহি জানে, আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে। मैं अभी अनुवाद पढ़ने वाला हूँ। सभी भक्तों से निवेदन है, फुल अटेंशन देके, 100% अटेंशन देके श्रवण करिए और अपना किताब को दर्शन करिए। नहीं तो बहुत गुह्य तत्व है, समझ नहीं पाएगा, छूट जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। সে যখন আমার চর্বিত তাম্বুল, ভগবান রাধা রানী के बारे में बोल रहे हैं, সে যখন আমার চর্বিত তাম্বুল আস্বাদন করেন, তখন সে আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়। ओके, राधा रानी भगवान का चर्वित तांबुल आस्वादन करते हैं। राधा रानी आस्वादन करती है। আমার মিলনে রাধা যে আনন্দ আস্বাদন করে তা শত মুখে বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারি না। इतना खुश हो जाती है श्रीमती राधा रानी भगवान से मिलने के बाद। আমাদের লীলা বিলাসের পর যখন আমি তার অঙ্গের মাধুরী দর্শন করি, তখন আমি সুখে মগ্ন হয়ে নিজেকে ভুলে যাই। ভরতমুনি বলেছেন যে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের রস সমান, কিন্তু আমার ব্রজের রস তিনিও জানেন না। তাৎপর্য, ভরতমুনির মতো যৌন বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের মতে জড়জাগতিক কামক্রীড়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানভাবে সুখ উপভোগ করে, কিন্তু চিৎ জগতে প্রেমের আস্বাদন ভিন্ন, সেই কথা জড় বিশেষজ্ঞেরা জানেন না। তো ভরতমুনি বলছেন যে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের রস समान। हिंदी में पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र वेता के अनुसार अनुवाद पढ़िए, पहले अनुवाद। अच्छा, भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। तात्पर्य पढ़े। भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र वेता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। तो भगवान एक संसारी विशेषज्ञ भरत मुनि, ये कोई जड़ जगत का कुछ होगा, कोई मुनि उनको कोट कर रहा है, उनके हिसाब से ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। चित जगत में, मेरे धाम में ऐसा नहीं है। অন্যেরও সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই,
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই, তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকায়। তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকায়। অন্যের মিলনে আমি যে সুখ পাই, श्रीमती राधा रानी संग सुख तार থেকে শত শত গুণে বেশি। तो इसीलिए भरत मुनि का जो लॉजिक है वो चित जगत में एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रसंग में अभी भगवान एक श्लोक कोट कर रहे। कहां से है ये श्लोक? ललित माधव 259। निर्धूतामृत माधुरी परिमला कल्याणि बिंबाधरो वक्त्रं पंकज सौरभम कुहारित श्लाघ विधस्ति गिर अंगम चंदन शीतलम तनुरियम सौदार्य सर्वस्वभा त्वम्मा सद्य ममेदमिन्द्रिया कुलं राधे मुहुर्मोदते। এই শ্লোকটি শ্রী রূপ গোস্বামী রচিত ললিত মাধব নাটকে শ্রীমতী রাধা রানীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। তো ভগবান বললেন, হে কল্যাণী রাধা রানী, তোমার দেহ সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস, তোমার রক্তিম অধর অমৃতের মাধুর্য থেকেও মধুর, তোমার শ্রীমুখে পদ্মের সৌরভ, তোমার মধুর বচন কোকিলের কুজনকেও হার মানায়, এবং তোমার অঙ্গ চন্দনের থেকেও সুশীতল। এইরকম রূপ গুণ সমন্বিত লীলাময় তোমাকে লাভ করে আমার ইন্দ্রিয় সমূহ পুনঃ পুনঃ মহা আনন্দে মগ্ন হচ্ছে। समझ गया क्यों कोट किया भगवान? इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि इसके पिछले वाला श्लोक देखिए 258। অন্যের মিলনে আমি যে সুখ পাই রাধা রানীর সঙ্গ সুখ তা থেকে শত শত গুণে বেশি। भगवान बहुत सुख पाते हैं श्रीमती राधा रानी से मिलने से। और एक श्लोक कविराज गोस्वामी कोट करे जहां भगवान ने ऐसे बोला है। ये श्लोक कहां से है? शायद नहीं लिखा है। এভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীমতী রাধা রানীর ভাব বর্ণনা করেছে। शायद वही कंटिन्यू हो रहा है, मैंने ललित माधव से ही कंटिन्यू हो रहा है शायद। अगला श्लोक 260 नंबर। रूपे कंसाहरस्य लुब्ध नयनम स्पर्शे अतिश्यात् त्वैच्छं वन्यम उत्कलित श्रुतिम परिमले समृष्टनासपूतम आराजाद्रसनम किल धरपुते न्यौचं मुखाम्भोरुहं दम्भोर्गीर्ण महदृतिं बहिरपि प्रोद्यात् विकारकुलम। अनुवाद। এভাবে শ্রী রূপ গোস্বামী শ্রীমতী রাধা রানীর ভাব বর্ণনা করছেন। তার নয়ন যুগল কংসারী কৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ। ये रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। ओके, কৃষ্ণ স্পর্শে তার অঙ্গ অত্যন্ত হর্ষিত। কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার জন্য তার কর্ণদয় সর্বদা উৎকণ্ঠিত। কৃষ্ণের অঙ্গ সুবাস আঘ্রাণ করার জন্য তার নাসিকা প্রফুল্লিত এবং কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার জন্য তার রসনা সর্বদাই আকুল। তার মুখপদ্ম আনত করে তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের রোমাঞ্চ আদি বিকার সমূহ তার অঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी इसको एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी थोड़ा। ठीक है, ये श्लोक देखिए। देखिए भगवान के बारे में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। तार नयन जुगल कंसारी कृष्ण सौंदर्य दर्शने मुग्ध। समझ में आया? श्रीमती राधा रानी का जो नयन है भगवान को दर्शन करने से मुग्ध हो जाता है। क्लियर? तो अनम्यूट करके हाँ हाँ बोलिएगा, नहीं तो मैं हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। কৃষ্ণ স্পর্শে তার অঙ্গ অত্যন্ত হর্ষিত। ক্লিয়ার?
हाँ ये समझ, हाँ प्रभु। কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার জন্য তার কর্ণদয় সর্বদা উৎকণ্ঠিত। ক্লিয়ার? हाँ प्रभु जी। कृष्णेर अंग सुबास आघ्राण माने शरीर का जो स्मेल है घाम का, घाम तो घाम ना कि इंद्राणी माता जी, स्वेट, स्मेल स्मेल स्मेल, तार नासिका कंस का नाम क्यों आ रहा है? कृष्णेर अधरामृत क्या बोले क्या बोले कंस, कंस का नाम क्यों आया है? उनकी आंखें कंस क्यों? कंसों का अरी, अरी माने शत्रु भगवान श्री कृष्ण, कंसारी कृष्ण। ओके, কৃষ্ণের অঙ্গ সুবাস আঘ্রাণ করার জন্য তার নাসিকা প্রফুল্লিত, नाक प्रफुल्लित, बहुत आनंदित हो जाते हैं नाक से। तो देखिए श्रीमती राधा ने हर एक शरीर का हर एक अंग से भगवान का स्वादन कर रहे हैं। जी এবং प्रभु। কৃষ্ণের অদনামৃত পান করার জন্য তার রসনা সর্বদাই আকুল। ক্লিয়ার? हाँ তার মুখপদ্ম আনত করে তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন। शी ट्राइज टू মানে अपने आप को संभालने का प्रयास करती है, लेकिन किंतु কৃষ্ণ প্রেমের রোমাঞ্চ আদি বিকার সমূহ তার অঙ্গ সমূহকে प्रकाशित হয়ে পড়ে। तो भगवान का जो कृष्ण प्रेम का जो भगवान का प्रेम का जो रोमांच आदि विकार है, जो जो रोमांच और रोमांच कंप सुतरंग, तो ये जो विकार है इससे क्या होता है, तार अंग समूह प्रकाशित हो पड़े। तो ये श्रीमती राधा रानी का अंग से देखने से पता चलता है कि उनका अष्ट सात्विक विकार हो रहा है। उसको छुपा भी नहीं पाती है, उसको रोक नहीं पाती है। তাতে জানি মতে আছে কোনো এক রস, তাতে জানি মতে আছে কোনো এক রস, আমারও মোহিনী রাধা তারে করে বশ, আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ, আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ, আমা হইতে রাধা পাই যে জাতীয় সুখ, তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ, তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ, নানা যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে, নানা যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে, সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে, সেই সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভে বাড়ে চিত্তে, রস আস্বাদিতে আমি কইল অবতার, রস আস্বাদিতে আমি কইল অবতার, রস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার। প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার। ठीक है, तो इस तरह भगवान वही जो 3 कारण क्यों अवतरण हुआ है उसमें से एक कारण बता रहे हैं। 261 का अनुवाद देखिए। তা বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে এমন কোনো এক রস আছে যা আমার মোহিনী শ্রীমতী রাধারানীকেও সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে। আমার থেকে রাধারানী যে সুখ পায় সেই সুখ আস্বাদন করার জন্য আমি সর্বদাই উন্মুখ। याद है वो कोटि कोटि गुण ज्यादा है, आश्रय सुख ज्यादा है वो विषय सुख से। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই রস আমি আস্বাদন করতে পারিনি। उपरंतु সেই कैसे पाएगा? एक व्यक्ति अपना माधुर्य का रस कैसे आस्वादन करना पड़ेगा? ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति अपना चेहरा कैसे देख पाएगा? उसको तो एक आईना लगेगा ना। নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই রস আমি আস্বাদন করতে পারিনি। উপরন্তু সেই সুখ মাধুর্যের ঘ্রাণে আমার চিত্তে তা আস্বাদন করার লোভ বেড়ে যায়। बहुत लोभ हो रहा है वो आस्वादन करने का। সেই রস আস্বাদন করার জন্য আমি অবতীর্ণ হয়েছি। বিবিধ প্রকারে আমি শুদ্ধ প্রেমের রস আস্বাদন করব। ক্লিয়ার? রাগ মার্গে ভক্ত ভরি, রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে, রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে, তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে। তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে। ये राग मार्ग माने रागानुगा मार्ग में, राग मार्गे स्वतःस्फूर्त भक्ति जे भक्ति करे, भक्त जो भक्ति करे ताहा আমি লীলা आचरण द्वारा सिखाऊं। ओके, बहुत ध्यान से अभी मैं जो बोलने वाले आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। 2 मार्ग होता है, एक विधि मार्ग, एक राग मार्ग। विधि मार्ग करते करते रागानुगा मार्ग में ऑटोमेटिक व्यक्ति एक समय आ जाता है ना। विधि मार्ग हम लोग फॉलो करते हैं और विधि मार्ग माने
रूल्स एंड रेगुलेशन है। सुबह उठना, मंगल आरती करना, भगवान को भोग लगाना, जप करना, 16 माला, गुरु पूजा करना, ये विधि मार्ग है, डिसिप्लिनरी। राग मार्ग क्या लिखा है? स्वतःस्फूर्त भावे, स्पॉन्टेनियस, कोई विधि विधि नहीं, जैसा दरकार वैसे ही तुरंत वैसे निकलेगा। तो वो कब आता है? वो अधिकार तभी आता है व्यक्ति को जब वो सारा जीवन विधि मार्ग में करते करते कभी कभी राग मार्ग में आ जाता है। ओके, तो गौरांग महाप्रभु भी इसी का प्रचार किया है, राग मार्ग का, और खुद अपने जीवन से दिखाया है महाप्रभु कैसे राग मार्ग में कभी कभी वो रह नहीं पाते थे गंभीरा में, और गंभीरा से निकल जाते थे, छोटा हो जाते थे, गंभीरा के द्वार से निकल जाते थे, शिकल पूरा एकदम निकल के एकदम समुद्र में चले जाते थे। हाँ, कभी कभी महाप्रभु का विकार होता था ऐसे, और महाप्रभु भक्त लोग को बोलते थे हमको प्रहलाद का स्तुति सुनाओ, हमको गोपी गीत सुनाओ, ऐसे करके, और अपने शरीर को गंभीरा के दीवालों में घिसते थे, मुंह को घिसते थे, ऐसा उनका विकार हो जाता था। तो अपने आचरण से महाप्रभु ने ये सब भक्त लोग को दिखाया है। उसीलिए महाप्रभु 265 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, अनुवाद देखिए ध्यान से। রাগমার্গে শত স্ফূর্তভাবে ভক্ত যে ভক্তি করে তা আমি লীला आचरण द्वारा सिखाबो, मेरा लीला और मेरे आचरण से मैं सिखाऊंगा। এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ, এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ, বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন, দ্বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন, রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে, রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে, সেই তিন সূক্ষ্ম ভূ নহে আস্বাদনে, সেই তিন সূক্ষ্মবু নহে আস্বাদনে। 267 का अनुवाद। किंतु एक तीनटे वासना याद है, वो जो 6 नंबर मंगलाचरण श्लोक में जो 3 वासना है, इंटरनल रीजन, আমার পূর্ণ হয়নি। কেননা বিজাতীয় ভাবে তা আস্বাদন করা যায় না। বিজাতীয় ভাবে মানে बिना अपने आप को परिवर्तन किए हुए। जैसे मैं बता रहा था, अपना चेहरा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, एक थर्ड पार्टी लगेगा, एक आयना लगेगा। বিজাতীয় ভাবে তা আস্বাদন করা যায় না, ভগবান বললেন। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? সেই রাধিকার ভাব ও কান্তি অবলম্বন না করলে এই তিনটি বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। তাই রাধারানীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে এই তিনটি বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমি অবতীর্ণ হব। यस राजीव प्रभु। वो भाव तो समझ में आया कि राधा रानी का भाव, लेकिन राधा रानी का अंग कांति का क्या जरूरत था महाप्रभु को? मतलब राधा रानी का जो अंग कांति है, ये श्रीमती राधा रानी का प्रेम का प्रकाश है। तप्त कांचन जैसा गोल्ड, मोल्टन गोल्ड जैसा उनका प्रेम का प्रतीक। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव शी हैज फॉर भगवान श्री कृष्ण। तो उसको लेके आना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके प्रभु। अगला श्लोक 269। सर्वभावे कइल कृष्ण এই তো নিশ্চয়, সর্বভাবে কইল কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়, কালে আইলো যুগ অবতার সময়। হেন কালে আইল যুগাবতার সময়। वो याद है ज्योतिर्मय सीता माता जी, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो टाइम भी आ गया था, 28वां चतुर्युग का कलयुग आ गया था। तो अभी वो भी कोइंसिडेंस, भगवान को इच्छा भी कर रहे हैं और महाप्रभु का अवतरण का टाइम भी, अवतरण का टाइम दिया। यस प्रभु। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনস্থির করলেন। সেই সময় যুগ অবতারের আবির্ভাবেরও সময় হলো। এসিলেন मैं गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अंगकांति कृष्ण को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसको महाप्रभु लिया था। वेरी गुड पॉइंट। हाँ, उसीलिए उसको लेकर आया, सो दैट कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड, एंड व्हेन कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड, राधा रानी आल्सो गेट्स अट्रैक्टेड, एंड व्हेन शी गेट्स अट्रैक्टेड, वो देखकर भगवान कृष्ण और अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट। यस राजीव प्रभु।
वो समझ में आया कि राधा रानी का अंग कांति भगवान को आकर्षित करता है, लेकिन भगवान स्वयं अगर उस अंग कांति को ग्रहण करते हैं तो उससे भगवान कैसे आकर्षित होंगे? भगवान स्वयं उस अंग कांति को ग्रहण कर रहा है। देखते हैं इस अंग कांति को क्यों, इसके बारे में कुछ श्लोक आया क्या अभी तक? अभी तक तो आया है ना, मैंने क्यों ये अंग कांति को धारण किया? श्री राधा, श्रीमती राधा रानी का भाव को क्यों धारण किया वो तो आया, अंग कांति को क्यों धारण किया देखते हैं। कृष्ण प्रभु जी 68 नंबर श्लोक छूट गया प्रभु, 268। राधा भाव अंगीकार धरितार वर्ण, রাধা ভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ, तीन सुख आस्वादिते हब अवतीर्ण किया था। তিন সুখ আস্বাদিতে হবে অবতীর্ণ। सर्वभावे कइल कृष्ण এই তো নিশ্চয়, সর্বভাবে কইল কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়। কালে আইলো যুগাবতার সময়, হেন কালে আইল যুগাবতার সময়, সেই কালে শ্রী অদ্বৈত করেন আরাধন, সেই কালে শ্রী অদ্বৈত করেন আরাধন। তাহার হুঙ্কারে কইল কৃষ্ণে আকর্ষণ, তাহার হুঙ্কারে কইল কৃষ্ণে আকর্ষণ। পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারী, পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতারী, রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি, রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি। নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু, নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু, তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু, তাহাতে প্রকট হইলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু। তা বলে গৌর পূর্ণিমা মহামহোৎসব কি জয়, কি জয় জয় জয়। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार बहुत सारी चीजों को रिपीट किए जा रहे, जैसे कि बोले ना कि बॉडीली कॉम्प्लेक्शन लेके आए महाप्रभु, तो ये कितनी बार आ गया अपने बहुत सारे चैप्टर्स में। फिर वापस से लॉर्ड केम टू अ डिसीजन कि वो साइमल्टेनियसली एज भी आ गया और चैतन्य महाप्रभु अवतार भी लेना चाह रहे साथ में। तो प्रभु मेरा क्वेश्चन है कि बार बार इतनी चीजें रिपीट क्यों करे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जब एक बार बोल दिए मतलब एक चीज। एक बार बोल दिया लेकिन उस समय ब्रीफ में बोला था। अब ये श्लोक देखने से पता चलेगा, इसीलिए मैं वहीं से शुरू किया था। 229 नंबर श्लोक प्लीज देखिए ज्योतिर्मय सीता माता जी। हाँ प्रभु 229 का अनुवाद पढ़िए। Yes, Prabhu. 229 का I have given a hint of the 6th verse. Now please hear. So sixth verse talks about the three reasons, internal reasons, correct? कविराज गोस्वामी बोले मैं अभी जस्ट आभास दिया हूँ, आभास मैंने जस्ट थोड़ा थोड़ा बताया हूँ। इसके बाद पढ़िए क्या लिखा है। Now please hear as I reveal the meaning of that original verse. तो अभी मीनिंग मैंने विस्तारित से बोल रहा है, यू नो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर से अगले वाला में क्या किया 230 में देखिए वो ओरिजिनल वर्स को फिर से रिपीट किया। Yes, वो समझ गए प्रभु, ये तो ठीक है, तो रेफरेंस वापस देने के लिए उनको इंग्लिश में बता रहे हैं, वो समझ गए प्रभु। लेकिन प्रभु वो तो डिटेल में बता रहे हैं। एक सेकंड, तो ये तो 6 नंबर श्लोक के लिए किया। हाँ पहले हिंट फिर डिटेल, बाकी 1 नंबर से शुरू किया, वहां भी ऐसे किया था कविराज गोस्वामी, बार बार रिपीट हो रहा था। एक बार हिंट एक बार डिटेल, एक बार हिंट एक बार डिटेल। समझ गए प्रभु, वो समझ गए प्रभु। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये वाला है ना, therefore assuming, जैसे 268 therefore assuming राधा रानी sentiments and bodily complexion I shall descend to fulfill these three desires। अब ये वाला श्लोक बहुत बार पहले रिपीट हुआ है, बहुत बार। ये श्लोक नहीं, मतलब ये कि I will descend taking राधा रानी's complexion and bodily sentiments, ये बहुत बार आया है ये वाला स्टेटमेंट, मतलब इधर उधर टर्न ट्विस्ट करके। तो बार बार बहुत बार एक ही चीज को बोला जा रहा है, तो वही पूछना है बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है ये चीजें।
देखिए, एक तो है बार बार आया है, दूसरा दूसरा कॉन्टेक्स्ट में एक ही श्लोक आया है। एक वन श्लोक कैन बी यूज्ड फॉर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। सेकेंडली बार बार ये भी बोलना चाह रहे हैं क्योंकि टू एस्टेब्लिश महाप्रभु एज एसपीओजी। महाप्रभु को एसपीओजी दिमाग में घुसाना इतना आसान चीज नहीं है, स्पेशली हम लोग के लिए। हाँ, मैं तो कभी इस्कॉन में आने के आगे मालूम ही नहीं था कि गौरनिताई कृष्ण है। हम तो गौरनिताई के बारे में जानते ही नहीं थे, सत्य बात बता रहा हूँ। हम भी नहीं जानते थे प्रभु। हम जब गौर निताई को देखे, मैं बोली ये कौन है जो दोनों मूर्ति है। तो इसलिए फिर हम बंगाल से होकर अगर हमको ऐसा है तो बोली सारा विश्व में बंगाल तो एक छोटा जगह है, तो सारा विश्व के लोगों को ये चीज कैसे दिमाग में घुसाएगा। उसीलिए ये रेपिटेशन भी दरकार है, बार बार पुनरावृत्ति। ओके কি বলে हाँ। পুনরাবৃত্তি না, কি বলে বারবার রিপিট করাকে বাংলায়? আরে ও শ্রীবাস্তু, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। ओके, थैंक यू प्रभु। अगला श्लोक, सर्वभावे কইল কৃষ্ণ এই তো নিশ্চয়। আচ্ছা, ये हो गया ना পিতামাতা গুরুগুর। তো অদ্বৈত আচার্য সেই সময় অদ্বৈত আচার্য নিষ্ঠা ভরে আরাধনা করেছিলেন। याद है कि अद्वैत आचार्य, हाँ हिरण्मय गौरांग प्रभु, सॉरी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो राधा रानी का हर चीज कृष्ण को अट्रैक्ट करता है, तो अंग कांति तो जरूर करेगा। इसको महाप्रभु नहीं लेने से कैसे होगा? राधा रानी का हर चीज कृष्ण को अट्रैक्ट करता है, अंग कांति भी करता है, उसका शरीर गंध भी करता है, सब तो उनको अट्रैक्ट करता है। इसलिए अभी तक कोई श्लोक आया है जिसमें बताया गया क्यों अंग कांति लेकर आया? अभी तो पढ़ा, अभी 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 भी पढ़ा ना, अभी 268 में तो है। তাই রাধা রানীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে এই তিনটি বাসনা। तो वही तो प्रश्न है, अंगकांति अवलंबन करे। तो अभी राजीव प्रभु पूछ रहे कि अंगकांति अवलंबन क्यों किया? क्योंकि कृष्ण को अट्रैक्ट करेगा, करता है। कृष्ण बोला है ना, आगे भी बोला है। माधुर्य के बारे में बताया है कि श्रीमती राधा रानी का जो माधुर्य है वो भगवान को अट्रैक्ट करता है, ये लिखा था। हाँ, अंगकांति भी अट्रैक्ट करता है, वो बोला है, आगे बोला देखेंगे तो श्लोक गया है। प्रभु बोला है, प्रभु 267 पढ़िए प्रभु, बता दिया कि अगर मैं ये नहीं लस्ट मतलब वो अंग कांति नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो ये डिजायर्स फुलफिल नहीं होगा। प्रभु लिखा है 267 में। हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा कि भगवान गौरांग महाप्रभु साक्षात अवतारी कृष्ण है, तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का अंग कांति लेकर आया है। वाई? तो माधुर्य कैसे? प्रभु 267 में लिखा है प्रभु कि अगर अंग कांति नहीं लूंगा तो मेरा डिजायर फुलफिल नहीं होगा। ये लिखा है 267 श्लोक में। क्यों नहीं होगा? आपको तो श्रीमती राधा रानी का आस्वादन करना है, कृष्ण प्रेम आस्वादन करना है, अपना माधुर्य आस्वादन करना है। तो ये लिखा है 266 में, फॉर वन कैनॉट एंजॉय देम इन अ कॉन्ट्ररी पोजिशन। वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो तो इसलिए तो भगवान अपना प्रेम को आस्वादन नहीं करना पाएगा, तो इसीलिए दूसरा बन के आना पड़ेगा। तो राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर आए। जैसे प्रभु 268 में लिखा है, therefore assuming राधा रानी sentiments and bodily complexion, I shall descend to fulfill these three desires. Why bodily complexion? That is the question. क्योंकि बॉडीली कंट्रोल मैंने उसको देख के ही कृष्ण का मैंने आनंद बढ़ते जाता है। कृष्ण गोपी लोग को देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, तो उनका अंदर, कृष्ण का अंदर भी तो वैसा वर्धित होता है ना, समुद्र मैंने आनंद समुद्र उनका भी बढ़ता है। इसीलिए राधा रानी का क्वालिटी लेके आना पड़ेगा सब। करेक्ट, वही राजीव प्रभु सेकंड वाले एक पॉइंट था, जो भगवान का जो माधुर्य अमृत है, भगवान श्रीमती राधा रानी को देखकर बहुत प्रफुल्लित होता है। बार बार आया था ये बात, भगवान श्रीमती राधा रानी का माधुर्य देखकर बहुत प्रफुल्लित होता है। तो इसीलिए वो अंग कांति लेकर आया, सो दैट ही कैन टेस्ट व्हाट इज द एंजॉयमेंट राधा रानी गेट्स। बिकॉज भगवान श्रीमती राधा रानी को देखकर प्रफुल्लित होता है, श्रीमती राधा रानी जब भगवान का माधुर्य देखते हैं वो भी प्रफुल्लित होता है, वो बढ़ जाता है, और उसको देखकर फिर इनका बढ़ जाता है, दोनों में कंपटीशन रहता है।
तो वो अगर अंगकांति नहीं लाएगा तो कैसे भगवान आस्वादन करेगा, कैसे गौरांग महाप्रभु आस्वादन करेगा? एकदम एकदम सही बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण प्रथमे तार पिता माता और गुरुजनদের अवतरण करालें, ठीक जैसे रामलीला में भी भगवान ने सब देवताओं को भेजा था ना बानर सेना बनाकर, याद है? तो वैसे ही इन लोग आगे बढ़ा, तो माता पिता तो आगे आएगा, ये तो 100%, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। दादू भी आगे आएगा, नीलांबर चक्रवर्ती, फिर जगन्नाथ मिश्र, सची माता, सब इन लोग आएगा। और गुरुजन और किनको आगे भेजा? कौन कौन आगे आया बताइए, 3-4 नाम लीजिए। मैं एक तो नाम लिया, गंगादास टीचर, अद्वैत आचार्य सीनियर, माधवेंद्र पुरी सीनियर, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, वेरी गुड। और नित्यानंद प्रभु, और सची माता, सची, हाँ बोलिए, श्रीवास सची माता, श्रीवास पंडित, हाँ प्रीतिमानंद प्रिय माता जी, सची माता जी, सची माता बोल दिया, माता पिता बोल दिया, गुरु ईश्वरपुरी, माधवेंद्र पुरी, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी उम्र में ज्यादा, वो भी आगे आया। और आगे कौन कौन आया बताइए? नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती, नाम बोल दिया, नाम हो गया, रिपीट। रामानंद है, जगदानंद, रामानंद राय, रामानंद राय छोटा था, बड़ा नहीं था, आई डोंट थिंक। प्रभु जी जगदानंद, सर्वम भट्टाचार्य, वो बोल दिया ऑलरेडी, फिर से आप लोग रिपीट कर रहे जो नाम बोल दिया। परमानंद पुरी, यस। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, না না ছোট বয়স কি বলছেন, মহাপ্রভু ছোট। আচ্ছা পঙ্কজ প্রভু, मुरारी মহাপ্রভু থেকে ছোট না, ওরা বড় বড় ছিল। মহাপ্রভু से बड़ा रूप गोस्वामी वैसे? मुरारी गुप्ता, हाँ हाँ मुरारी गुप्ता होगा 100%, यस मुरारी गुप्ता थोड़ा एजेड था, वैद्य था। हाँ तो स्वरूप दामोदर भी हो गए, स्वरूप दामोदर नॉट श्योर। ओके, उनका सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर उनसे छोटा था शायद। यस पंकज प्रभु, यस ज्योति माता जी। ओके, अगला श्लोक এই তো আচ্ছা, क्या लिखा है? তারপরে শ্রীমতী রাধারানীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তিনি নিজে সচী মাতার গর্ভরূপ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু, শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে প্রকাশিত হইলেন। পূর্ণচন্দ্র মতো, কিন্তু उस दिन पूर्णचंद्र माने उस दिन पूर्णिमा था ना, फाल्गुन पूर्णिमा। हाँ प्रभु जी पूर्णचंद्र, और ग्रहण था, ग्रहण में करेक्ट, सची मातार गर्भरूप शुद्ध दुग्ध सिंधु, इसका हिंदी क्या लिखा है? क्षीर सागर, क्षीर सागर के समान माता सची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। जितना मांगा है उतना ही बोलिए ना, फिर से बोलिए। एक्स्ट्रा बोलने से ना फिर जो बोला है मांगा है वो चीज खो जाता है। क्षीर सागर के समान, अच्छा, शुद्ध दुग्ध सिंधु माने क्षीर सागर, दुग्ध सिंधु। अच्छा, तो सची माता का गर्भ दुग्ध सिंधु जैसे से कंपेयर किया गया, करेक्ट? ওই তো করাইলু, সরি, ওই তো করিলু ষষ্ঠ শ্লোকেরও বাখান, এই তো করিল ষষ্ঠ শ্লোকেরও ব্যাখ্যান, শ্রীরূপ গোসাইয়ের পাদ পদ্ম করি ধান। শ্রীরূপ গোসাইয়ের পাদ পদ্ম করি ধ্যান, এই দুই শ্লোকেরও আমি যে করিলু অর্থ, এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ, শ্রীরূপ গোসাইয়ের শ্লোক প্রথম সমর্থ, শ্রীরূপ গোসাইয়ের শ্লোক প্রমাণ সমর্থ। শ্রী রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে ধ্যান করে আমি এভাবেই ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান করলাম। এই দুইটি শ্লোকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক আমি যে ব্যাখ্যা করলাম তার প্রমাণ রয়েছে শ্রী রূপ গোস্বামীর শ্লোকে। तो अभी रूप गोस्वामी का श्लोक कोट कर रहे हैं, स्तवमाला द्वितीय चैतन्य अष्टक के तृतीय श्लोक 275 वाला देखिए, ये रूप गोस्वामी का श्लोक है। तो कविराज गोस्वामी बोला, मैं जो 5 और 6 नंबर श्लोक अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये श्लोक रूप गोस्वामी का इस बुक में दिया हुआ है। अपार अपारम अपारम कश्यपि प्रणय जन वृंदास्य कूतुकी रसस्तोममृत्व माधुरम उपभोक्तुं कमपीय रुचं स्वामवाव्रे दुतिमिह तदीयं प्रकाटयन्
तदेव चैतन्य कृति अतितरम न कृपायतु। অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের মধ্যে কোনো একজনের মানে শ্রীমতী রাধারানীর অন্তহীন মাধুর্য রস আস্বাদন করার বাসনা করেছেন এবং তিনি তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তার শ্যামকান্তি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করেছেন। इसीलिए मैं बोला था राजी प्रभु कि ये तप्त कांचन जो है ये भगवान का कृष्ण प्रेम का एकदम उन्नत अवस्था में है। इसीलिए मोल्टेन गोल्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ कृष्ण प्रेम प्रफुल्लित। इसलिए देखिए ये क्या लिख रहा है, তার শ্যামকান্তি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করেছিলেন। इसीलिए प्रेम आस्वादन करने के लिए तप्त कांचन वर्ण दरकार था, because molten gold exemplifies of it shows the extreme love she has for Krishna. সেই চৈতন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেন আমার কৃপা করেন। ओके, सो कविराज गोस्वामी बोल रहे ये दो रीजन रूप गोस्वामी का श्लोक, मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी का श्लोक। गुरुदेव कैसे हो गए रूप गोस्वामी? रूप गोस्वामी इसलिए गुरुदेव क्योंकि रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के इंटरनल रीजन किन से सुना था? स्वरूप दामोदर से। आगे आया था ये बात कि महाप्रभु का इंटरनल रीजन सिर्फ स्वरूप दामोदर को मालूम था। मैं उस समय बोला था कि वो सेंसर बोर्ड जैसा था, याद है? क्योंकि वो सेक्रेटरी थे महाप्रभु का स्वरूप दामोदर, और स्वरूप दामोदर सब ये सब इंफॉर्मेशन किनको पास किया? रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी किसको पास किया? रूप गोस्वामी को। यस, किरण में ग्रंथ प्रभु। रूप गोस्वामी स्वयं भी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का मैंने क्या सोचते हैं, उसको रूप गोस्वामी भी जानते हैं। क्योंकि जो श्लोक था हम लोग आगे पढ़ा है, रथयात्रा में ऐसा था तो इसीलिए ये सही मन का भाव जानते थे। श्री चैतन्य मनोभिस्तम स्थापितम ये न भूतले, ये श्री चैतन्य मनोभिस्तम श्लोक कौन बोला था? शायद कौन बोला था? वो अपने अपने बारे में अपने खुद बोला क्या? वो नहीं बोला, शायद स्वरूप दामोदर बोला होगा। रूप गोस्वामी का जब ग्लोरीफाई कर रहा था, जब वो पुरी में आया था, उस समय स्वरूप दामोदर बोला था। ये जो रूप गोस्वामी है, एक भाई एक बार आया था ना, एक करके आया था पुरी में। मेरे को जितना दूर याद है उस समय स्वरूप दामोदर बोला होगा श्री चैतन्य मनोभिस्तम। ये जो रूप गोस्वामी है हो सकता है महाप्रभु का मन का बात जानता है। ओके, अगला श्लोक 276। मंगलाचरणं नहीं, ये कैसे? मंगलाचरणं नहीं, मंगलाचरणं कृष्ण नहीं, क्या ट्यून होगा इसका? मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजन। हाँ करेक्ट, कोई में देखा। मंगलाचरणं कृष्ण मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणम चैतन्य तत्व लक्षणम प्रयोजनं चावतारे प्रयोजनं च वातारे लोक शक्तिर निरूपितम। শ্লোক ষটকই নিরূপিতম। এইভাবেই মঙ্গলাচরণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব লক্ষণ ও তার অবতরণের প্রয়োজন 6টি श्लोकेर माध्यमे निरूपित হয়েছে। ओके, तो हम लोग को मालूम है पहला 6 श्लोक किसका है? महाप्रभु का। अगला 5 श्लोक किसका है? प्रभु भूल गया, नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु। 6 + 5। इसके बाद अद्वैत आचार्य का शायद 2 ठो या 1 ठो रह गया, भूल गया। एनीवेज, ठीक है, 2 श्लोक था प्रभु, 2। ओके,
6 + 5 11 12 13 फिर पंचतत्व का एक तो है ऐसे कुछ। यस अब्दुल सैन प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। वो श्री चैतन्य मनोविष्टम जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने कंपाइल किया था ये प्रार्थना। नहीं ये चैतन्य जयंती श्लोक में आता है प्रभु जी। नहीं ये तो नरोत्तम दास ठाकुर तो बहुत बाद में, वो तो नेक्स्ट जनरेशन रूप गोस्वामी की प्रार्थना करने के लिए उन्होंने कंपाइलेशन किया था। हाँ, एक्चुअली में रूप गोस्वामी के लिए नहीं था, ये रूप के लिए था, भगवान के स्वरूप के ऊपर था, लेकिन उनका भाव रूप गोस्वामी के ऊपर था, इसके लिए उन्होंने रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र बना लिया है। प्रणाम मंत्र बना लिया। लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में ये आता है क्या? हिलेन में ठीक बोल सी ये किसी ने बोला था। हाँ ये प्रभु जो बोल रहे हैं ना वो ऐसे ही हो सकता है, बाद में भी आ सकता है, उसी टाइम में साथ साथ आया, उसके बाद नहीं मैंने तो किसी ने प्रणाम मंत्र बनाया रूप गोस्वामी का। हाँ ठाकुर ने बनाया, लेकिन ये श्री चैतन्य मानव इष्टम ऐसे करके उनका ग्लोरीफाई किया गया था सबके साथ। हाँ उधर भी बोले थे ना, उधर बोले थे जे रूप गोस्वामी सर्वदास दामोदर प्रभु जी बोले थे जे रूप गोस्वामी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का। ये आई रिमेम्बर, देखना पड़ेगा ये आता है। ये एक भाई सब गया था महाप्रभु से मिलने, उस समय ये पूरी में सबके सामने ऐसे बोला था। हाँ सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी रूप गोस्वामी ने बनाया था महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। रूप गोस्वामी ने बनाया था महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। महाप्रभु का प्रणाम मंत्र वो तो अलग टॉपिक है, वो तो अलग टॉपिक है माता जी। महाप्रभु को नमो महावदन नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय वो अलग है। हम लोग रूप को ये वाला लाइन का बात कर रहे हैं। ओके, इस अध्याय का अंतिम श्लोक 277। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आस, श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी আসলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ পদ্মে আমি প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। এটি শ্রী চৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন কথন বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। এখানে রহিল অমৃত লহরী, ভরিয়া সবে বল হরি হরি। जय 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 जय